بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اپنے مقصد میں پوری تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ کو زندگی میں کامیاب بنائے، کامیابی آپ کے قدم چومے، یہی دعا ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں۔ آپ اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو یا نئی کلاس ہم اپلوڈ کریں براہ راست اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ آئیے آج کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج انہ الواضح الجزء الاول کی سے کلاس ہے۔ امید ہے اور عزم اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ انہ الواضح کی مکمل سیریز ایک تیار ہو رہی ہے اور پایۂ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچانے کا ارادہ ہے۔ انہ الواضح ابتدائیہ کے 3 حصے، پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ آپ کی دعائیں اگر شامل حال رہی اور اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی رہی۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ نیا ایک سبق میں نے ایک نئے سبق کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے نص فعل مضارع مجزوم اور فعل مضارع مرفوع کی بحث آئی ہے۔ 2 سبق وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے اور سمجھنا آسان ہے، اس کے لیے وہ صرف سے متعلق ہے وہ موضوع، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا اس کو چھوڑ دیں اور آگے ایک اہم عنوان اور ایک اہم سبق، اگر آپ بگنرس ہیں، پہلی بار عربی زبان سیکھ رہے ہیں، نحو سیکھ رہے ہیں اور نحو سیکھنے کے لیے انہ الواضح پڑھنے کے لیے آپ نے چینل کو جوائن کیا ہے، تو چونکہ آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب اور مفید رہے گا، لہٰذا ہم ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کان و اخواتها۔ لفظی ترجمہ اس کا ہے کانا اور اس کی بہنیں، اختن کی جمع اخوات، کانا اور اس کی بہنیں، یعنی کانا اور اس کی نظیریں، کانا اور اس سے ملتے جلتے دیگر افعال، ٹھیک ہے، ان کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال الامثلۃ، مثالیں دیکھیے۔ الزحام شدید، الزحام شدید، آپ جانتے ہیں الزحام جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور الزحام مبتدا ہے، شدید خبر ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الزحام مبتدا لایا گیا ہے، الف لام داخل کر کے معرف باللام بنایا گیا اس کو، اور شدید خبر نکرہ لائی گئی ہے۔ دوسری چیز الزحام مرفوع ہے، یعنی رفع دیا گیا ہے بشکل ضمہ، اور شدید پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شدید بھی مرفوع ہے، یعنی اس کے آخر میں بھی رفع دیا گیا ہے بشکل ضمہ، ٹھیک ہے۔ الزحام مبتدا واحد ہے، اس لیے شدید خبر بھی واحد، ٹھیک ہے۔ الزحام شدید کا معنی کیا ہوگا؟ بھیڑ زیادہ ہے۔ یہ جملہ مفیدہ کہلائے گا کیونکہ بات اور جملہ مکمل ہو رہا ہے، سننے والے کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے اس کو جملہ مفیدہ، مرکب تام اور کلام کہتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر یہیں شدید نکرہ کے بجائے معرفہ ہوتا اور جملہ اس طرح ہوتا الزحام الشدید، سخت بھیڑ، اس وقت یہ جملہ پھر اس صورت میں جملہ مفیدہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ غیر مفیدہ، کیونکہ بات اس وقت پوری نہیں ہوگی جب آپ دونوں کو معرفہ پڑھیں گے یا دونوں کو نکرہ، یعنی الزحام الشدید کہیں یا زحام شدید،
उस सूरत में जुमला मुफीदा नहीं होता है, वो मौसूफ सिफत का जुमला बन जाता है। और मौसूफ सिफत यानी मुरक्कब तौसीफ़ी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि वो जुमला गैर मुफीदा होता है, उसके लिए ख़बर की लाने की मज़ीद ख़बर लाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बहरहाल तो ये आप देख रहे हैं अज़्ज़िहामु शदीदुन मुब्तदा ख़बर का जुमला है। इसी मुब्तदा ख़बर के जुमले पर दाखिल किया गया है काना को, जो कि क्या है, फ़ेल नाक़िस है। आप देखिए इसने क्या अमल किया, जुमला इस्मिया पर मुब्तदा ख़बर वाले सेंटेंस पर दाखिल होने के बाद इस काना ने क्या अमल किया। देखिए काना ज़िहामु शदीदन, ठीक है, अज़्ज़िहामु काना का क्या बनेगा, इसम, और शदीदन काना की ख़बर। यहाँ आप देखें इस वाले जुमले में अज़्ज़िहामु शदीदुन में अज़्ज़िहामु पर जो रफ़ा आया है वो मुब्तदा होने की वजह से है, और शदीदुन पर जो रफ़ा है वो ख़बर होने की वजह से। यहाँ काना ज़िहामु में जो ज़िहामु रफ़ा है, मरफ़ू है, ये मुब्तदा होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसको काना जो फ़ेल नाक़िस इस पर दाखिल है, इसने इसको रफ़ा दिया है, ठीक है ना। अज़्ज़िहामु मरफ़ू क्यों है, क्योंकि काना का इसम है। पता चला कि काना का इसम क्या होता है, मरफ़ू, और काना की ख़बर क्या होती है, शदीदन। जो मुब्तदा होगा वो काना का इसम बन जाएगा, और जो मुब्तदा की ख़बर होगी वो क्या बन जाएगी, काना की ख़बर, और वो मंसूब होगी, उसके आखिर में नसब आएगा बशक्ल फ़तहा। काना ज़िहामु शदीदन का मतलब क्या होगा, भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी। और कभी काना का तर्जुमा जो है भीड़ ज़्यादा है से भी करते हैं, भीड़ ज़्यादा है, उस वक्त उसका मतलब ये होता है भीड़ ज़्यादा है, यानी भीड़ इसी वक्त ज़्यादा नहीं, बल्कि भीड़ जो है पहले भी, यानी इससे पहले जो पास्ट में या 2 घंटा 4 घंटे पहले से भीड़ ज़्यादा है। ये मफ़हूम ख़ुद बख़ुद उसमें निकल आता है, वो एक तफसील तलब मौजू है। इंशाअल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप ख़ुद समझ जाएंगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा, अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, इसका मतलब क्या है, काना चूँकि माजी में ख़बर को साबित करने के लिए आता है, तो कान अल्लाहु गफ़ूर और रहीम के अंदर ख़ुद ही माना वो मफ़हूम निकलता है कि अल्लाह माजी में भी रहम करने वाला था और अभी भी है। ठीक है जी, चलिए। और काना की बहुत सारी किस्में हैं, वो अभी इस वक्त मुनासिब नहीं, आप चूँकि मुब्तदी हैं, बिगिनर्स हैं, आपको ज़्यादा डीप और गहराई में नहीं जाना है। अल-बैतु नज़ीफ़ुन, अब आप बताइए, अल-बैतु मुब्तदा, नज़ीफ़ुन ख़बर, फ़ौरन आप बता रहे हैं। अल-बैतु मारिफ़ा है, मुब्तदा मारिफ़ा, नज़ीफ़ुन ख़बर, मुब्तदा की ख़बर नकिरा होती है। दोनों मरफ़ू है, चूँकि मुब्तदा ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं। अल-बैतु मुज़क्कर है, इसलिए नज़ीफ़ुन भी मुज़क्कर। अल-बैतु वाहिद है, इसलिए ख़बर नज़ीफ़ुन भी वाहिद। अब इस जुमले को क्या कहेंगे, जुमले मुफीदा, कलाम मुरक्कब ताम। और अगर यहाँ पर अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा, घर साफ है का तर्जुमा उर्दू में हम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर होता अल-बैतु अन-नज़ीफ़ु, तो क्या तर्जुमा करते, साफ घर, उस वक्त ये जुमला मुफीदा नहीं होगा बल्कि गैर मुफीदा कहलाएगा। अल-बैतु अन-नज़ीफ़ु, फिर उसके बाद उसकी ख़बर लानी पड़ेगी, जमीलुन वासिउन, है ना, कुछ भी आप ख़बर लाएंगे तब बात पूरी हो जाएगी। बहरहाल हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं अल-बैतु नज़ीफ़ुन कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया मुब्तदा व ख़बर पर मुश्तमिल जुमला है। इसी मुब्तदा ख़बर वाले सेंटेंस और जुमले पर हम दाखिल करते हैं अफ़ाल नाक़िसा में से किसको, काना को। अब जब काना इस पर दाखिल होगा तो जो मुब्तदा था वो काना का इसम बन जाएगा और मरफ़ू होगा, और नज़ीफ़न जो मुब्तदा की ख़बर थी वो अब काना की ख़बर हो जाएगी, और उसको हम क्या देंगे, नसब देंगे। तर्जुमा क्या करेंगे, कानल बैतु नज़ीफ़न, घर साफ़ था। अब जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए, वक्त ज़्यादा ना लेते हुए सबक को पूरा भी करना है। अस्सौबु कसीरुन, अस्सौब कपड़ा, कसीरुन माना छोटा, अस्सौबु कसीरुन कपड़ा छोटा है, कपड़ा छोटा है।
अस्सौब अल-क़सीरु छोटा कपड़ा, सौबुन क़सीरुन एक छोटा कपड़ा या कोई छोटा कपड़ा, ठीक है ना। मुब्तदा ख़बर वाला सेंटेंस है अस्सौबु क़सीरुन। इसी मुब्तदा ख़बर वाले जुमले पर अफ़ाल नाक़िसा में से एक और फ़ेल नाक़िस सारा को दाखिल कर रहे हैं। सारस्सौबु क़सीरन, अब यह अस्सौबु क्या बन जाएगा, सारा का इसम। अब इस पर जो रफ़ा आया है वो किस वजह से आया, सारा का इसम होने की वजह से, क्योंकि सारा अपने यानी फ़ेल नाक़िस है, फ़ेल नाक़िस अपने इसम को रफ़ा देता है। और क़सीरन काना सारा की ख़बर, और सारा यानी फ़ेल नाक़िस अपनी ख़बर को क्या देता है, नसब। इसीलिए आप क़सीरन को क्या देख रहे हैं, मंसूब, उसकी आखिर में नसब आया है, नसब दिया गया है बशक्ल फ़तहा, ठीक है। क्या माना हो जाएगा, कपड़ा छोटा हो गया। सारा के मानी सारा यसीरु होना। देख रहे हैं काना और सारा इनके माजी और मुजारे भी बनते हैं, नहीं गर्दानें होती हैं, ठीक है। काना काना कानू। अब इनका जो इसम होगा, अगर इसम मुअन्नस होगा तो फिर काना भी मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कानत अलबिंतु, अलबिंतु मिसाल के तौर पर अलबिंतु जमीलतुन लड़की खूबसूरत है, तो आप क्या कहेंगे, लड़की खूबसूरत थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कानतिल बिंतु जमीलतन, कानतिल बिंतु कानत हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह सारा, उसी तरह लैसा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। कपड़ा छोटा हो गया, सारा किसके लिए आता है, तब्दीली हैयत के लिए, यानी हैयत किसी चीज़ की हैयत और कैफियत की और कंडीशन की तब्दीली को बताने के लिए आता है। पहले चीज़ कुछ और थी, बाद में किसी और हालत में वो तब्दील हो गई, इसको बताने के लिए क्या लाते हैं, सारा, ठीक है ना। अलबर्दो कारिसुन सर्दी, अलबर्दो ठंडी, सर्दी, कसी कारिसुन, कारिसुन के माने, कारिसुन का माना होता है बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी, मुंजमिद कर देने वाली सर्दी, ठीक है ना, या ठिठरा देने वाली सर्दी। तो क्या कहेंगे, अलबर्दु कारिसुन सर्दी सख्त है या सर्दी मुंजमिद कर देने वाली है, सर्दी दांत बजाने वाली सर्दी है, दांतों को बजाने वाली सर्दी है, या ठिठरा देने वाली सर्दी है, सर्दी ठिठरा देने वाली है। सारल बर्दु कारिसन ठंडी क्या हो गई, मुंजमिद कर देने वाली हो गई, ठिठरा देने वाली हो गई। चलिए, अलबर्दु सारा का इसम, कारिसन सारा की खबर। अलबर्दु मरफू है, क्यों है, क्योंकि सारा का इसम मरफू होता है। कारिसन मंसूब है, क्यों, क्योंकि सारा की खबर मंसूब होती है। आगे चलिए, अल खादिमु कवियुन नौकर ताकतवर है, मुब्तदा खबर का जुमला है। लैसल खादिमु कवियन, लैसा किस लिए आता है, नफ़ी के लिए, लैसा माने नहीं, लैसल खादिमु कवियन, खादिम नौकर ताकतवर नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए अल खादिमु मरफू क्यों है, क्योंकि लैसा का इसम है, लैसा अफ़ाल नाक़िसा में से है। अफ़ाल नाक़िसा क्या अमल करते हैं, अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। लिहाजा अल खादिमु मरफू है, लैसा का इसम होने की वजह से। कवियन मंसूब है, लैसा की ख़बर होने की वजह से। इसमें अक्सर इंसान बाद में भूल जाता है, जहन में एकदम जब कोई सवाल पूछता है काना के अमल के बारे में तो जहन में फ़ौरन नहीं आता, इसलिए आपको ये याद रखना है कुरान की आयत, मिसाल कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, तो देख रहे हैं अल्लाहु काना का इसम है, मरफू है, गफूरन काना की ख़बर है, मंसूब है, और ये मुब्तदा ख़बर का जुमला है। अगर काना को हटा दो तो क्या होगा, अल्लाहु गफूरन हो जाएगा फिर, क्योंकि मुब्तदा की ख़बर मरफू होती है, तो अल्लाहु गफूरन नहीं रहेगा काना को अगर आप हटा देंगे तो। चलिए, अल आमिलु नशीतुन, अल आमिल मनी काम करने वाला, मजदूर, नशीतुन, नशीतुन के मानी चुस्त, चाको चौबंद यानी एक्टिव, ठीक है, यानी मजदूर एक्टिव है, मुतहर्रिक है, फ़आल है, काम करने वाला है, चुस्त है। लैसल आमिलु नशीतन, मजदूर चुस्त नहीं है, चाको चौबंद नहीं है। तो अल आमिलु लैसा का इसम, नशीतन लैसा की ख़बर मंसूब। चलिए नीचे की तरफ चलें, आगे बढ़िए।
पहले इनको इरेज करते हैं ज़रा। अगली मिसाल देखिए, अन्नहिमु मरीज़ुन, अस्बह अन्नहिमु मरीज़न। अन्नहिम कहते हैं, नहिम यनहमु नहमन, व नहामतन के माने आते हैं किसी चीज़ के अंदर हद से ज़्यादा शौकीन होना, यानी ठीक है, या किसी हद से ज़्यादा हिर्स का होना। और अन्नहिम उस शख्स को कहते हैं जो जिसका खाते खाते पेट भर जाए लेकिन खाने की जो रग़बत है, ख्वाहिश है, वो ख़त्म ना हो, मज़ीद हल में मज़ीद का जो है वो मुतालबा करे और लाओ, यानी खाऊ जिसको हम कह सकते हैं, या पेटू। अन्नहिमु मरीज़ुन, नहिम पेटू बहुत ज़्यादा खाने वाला, बीमार है। अस्बहन नहिमु मरीज़न, खाऊ शख्स हद से ज़्यादा खाने का हिर्स रखने वाला, वो बीमार हो गया। अस्बहा सुबह के वक्त, तो अस्बहा कहते हैं सुबह के वक्त को। अस्बहा युस्बिहु मुज़ारे भी आता है, तो अस्बहा चूँकि माजी है तो तर्जुमा हम क्या करेंगे, खाने वाला, बहुत ज़्यादा खाने वाला बीमार हो गया सुबह के वक्त। वक्त को मेंशन करेंगे, वक्त के साथ तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अल जव्व मुमतिरुन, जव्व मौसम, मुमतिरुन बरसने वाला। अल जव्व अस्बहल जव्व मुमतिरन, सुबह के वक्त मौसम बरसने वाला हो गया, ठीक है। अगर युस्बिहु होता तो हम क्या कहते हैं, युस्बिहुल जव्व मुमतिरन, सुबह के वक्त मौसम बरसने वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर मुस्तकबिल का तर्जुमा करेंगे मुज़ारे के एतबार से। सेम वही सारा यसीरू का भी है और उसी तरह काना यकूनू के भी। ठीक है, उसके बाद आइए अल-आमिलु मुतअबुन, मुतअब मानी थका हुआ, थका मांदा। अल-आमिल मजदूर, मजदूर थका हुआ है। मुतअब ताइब यताबु ताब माने थकना, मुतअब थका हुआ, इसमें मफूल का सेगा। अमसल आमिलु मुतअबन, आमिल मजदूर काम करने वाला शाम के वक्त थक गया। अल-आमिलु मुतअबुन मुब्तदा खबर वाला सेंटेंस है। इसी मुब्तदा खबर वाले सेंटेंस पर हमने अफ़ाल नाक़िसा में से किसको दाखिल किया, अमसा को, जिसके माने हैं शाम के वक्त को बताने के लिए लाते हैं। अमसल आमिलु मुतअबन, शाम के वक्त मजदूर थक गया। अज़्ज़हरु ज़ाबिलुन, फूल मुरझाया हुआ है। फूल ज़ाबिल माने मुरझाने वाला, मुरझाना, गुलाब का फूल मुरझाया हुआ है। अमसज़्ज़हरु ज़ाबिलन, शाम के वक्त फूल मुरझा गया, ठीक है। तो अज़्ज़हरु ज़ाबिलुन मुब्तदा खबर वाले सेंटेंस पर अमसा अफ़ाल नाक़िसा में से अमसा को दाखिल किया गया, लिहाजा अज़्ज़हरु को अमसा ने अपना इसम बनाकर रफ़ा दे दिया और ज़ाबिलन को अपनी खबर बनाकर नसब दे दिया। किसने, अमसा ने। अल-ग़मामु कसीफ़ुन, अम्स अस्बह और अमसा, जैसे हदीस के अंदर आया है कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा, व युमसी काफिरन, और शाम के वक्त काफिर हो जाएगा। क़यामत के करीब की निशानियों में से है, हदीस के अंदर आया है। बहरहाल आगे चलिए। अल-ग़मामु कसीफ़ुन, ग़माम कहते हैं बादल को। अल-ग़मामु कसीफ़ुन, कसीफ़ के मानी घना, ठीक है, बादल घना है, बादल घने हैं। अज़हल ग़मामु कसीफ़न, अज़हा कहते हैं चाश्त के वक्त को बताने के लिए आता है। चाश्त का वक्त यानी नाश्ते के जो वक्त का वक्त होता है। अज़हल ग़मामु कसीबन, कसीफ़न, शाम के वक्त, चाश्त के वक्त बादल घने हो गए। अश्शारिउ मुज़दहिमुन, सड़क भीड़ भाड़ वाली है। मुज़दहिम यानी भीड़ भाड़ वाली जगह, मुज़दहिम, इज़्दिहाम कहते हैं भीड़ को। कह रहे हैं अज़हा अश्शारिउ मुज़दहिमन, सड़क चाश्त के वक्त भीड़ भाड़ वाली हो गई, यानी चाश्त के वक्त सड़क पर भीड़ बढ़ गई, भीड़ ज़्यादा हो गई। अब देखिए अज़हा अफ़ाल नाक़िसा में से अज़हा, चाश्त के वक्त को बताने के लिए। अश्शारिउ अज़हा का इसम मरफू, मुज़दहिमन मंसूब है क्योंकि अज़हा की ख़बर है, और अज़हा फ़ेल नाक़िस अपनी ख़बर को नसब देता है। आइए नीचे की तरफ।
अलमतरु गज़ीरुन, मतर जानते हैं अमतार जमा बारिश, अलमतरु गज़ीरुन बारिश मौसलाधार है, गज़ीर मौसलाधार तेज़। ज़ल्ला यज़ल्लु, ज़ल्ला कहते हैं दिन भर कोई काम हो उसको बताने के लिए, दिन में काम के वक्त को होने के, दिन के अंदर किसी चीज़ के होने को बताने के लिए। ज़ल्लल मतरु गज़ीरन, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तर्जुमे से आप समझ जाएंगे, ज़ल्लल मतरु गज़ीरन बारिश दिन भर मौसलाधार रही, ठीक है। अल गुबारु सायरुन, गर्द उड़ने वाला है, सायर उड़ने वाला, उड़ना, गर्द उड़ रहा है। ज़ल्लल गुबार, अल गुबारु सायरुन मुब्तदा खबर का सेंटेंस है, आप जानते हैं। ज़ल्लल गुबारु सायरन, गुबार गर्द दिन भर उड़ता रहा। अल मिस्बाहु मुत्तक़िदुन, इत्तक़दा यत्तक़िदु मनी जलना, औक़दा यूक़िदु जलाना। अल मिस्बाहु चराग, मुत्तक़िदुन जल रहा है। याद रखिए इसमें फ़ाइल जो आता है उसका तर्जुमा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी करते हैं, ठीक है ना, यानी रहा है, रही है, जैसे अना ज़ाहिबुन, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हमने किया अग़ुबारु सायरुन, सारा से सायरुन गर्द उड़ रहा है। अल मिस्बाहु मुत्तक़िदुन, चराग जल रहा है। बातल मिस्बाहु मुत्तक़िदन, चराग रात भर जलता रहा। अल मरीज़ु मुतअल्लिमुन, मरीज़ बीमार, मुतअल्लिम तकलीफ़ ज़दा, तकलीफ़ में होना, मुतअल्लिम, तअल्लम यतअल्लमु से मुतअल्लिम, मुतअल्लिम नहीं, ऐन से नहीं हमज़ा से, यानी तकलीफ़ वाला, तकलीफ़ में मुब्तला होना। बीमार तकलीफ़ ज़दा है, तकलीफ़ में मुब्तला है, दर्द में मुब्तला है। बातल मरीज़ु मुतअल्लिमन, बीमार रात भर तकलीफ़ में रहा, ठीक है, दर्द में मुब्तला रहा। तो आप देख रहे हैं यहाँ बाता भी अफ़ाल नाक़िसा में से है, ज़ल्ला बाता। तो अल मिस्बाहु अल मरीज़, बाता का क्या है, इसम मरफू, मुत्तक़िदन मुतअल्लिमन, बाता की ख़बर, इसलिए मंसूब। तो इन मिसालों से आपने ये समझ लिया कि अफ़ाल नाक़िसा क्या क्या है, काना, सारा, लैसा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, ठीक है। ये क्या अमल करते हैं, मुब्तदा ख़बर वाले सेंटेंस पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इसम बनाकर रफ़ा, ख़बर को अपनी ख़बर बनाकर नसब देते हैं। अल बहसु, मिसालें देखिए, कुल्लु मिसालिन फ़िल क़िस्मिल अव्वली यतअल्लफ़ु मिन मुब्तदाइन व ख़बरिन, हर एक मिसाल पहली किस्म में के अंदर, पहली किस्म से मुराद वही काना वाली किस्म, यतअल्लफ़ मिन गलत हो गया, पहली किस्म से मुराद यानी इस तरफ जो दाएं तरफ हैं वो मिसालें हैं, नीचे तक कह रहे पहली किस्म के अंदर मौजूद हर एक मिसाल मुतअल्लफ़ मिन मुब्तदाइन व ख़बर, एक मुब्तदा और ख़बर से बनी हुई है। वहुमा मरफ़ूआन कमा अलिमता, और वो दोनों यानी मुब्तदा ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं जैसा कि आपको मालूम है। वइज़ा नज़रता इलल क़िस्म अस्सानी, और अगर आप दूसरी किस्म की तरफ देखें, रायतल अमसिलता आइनहा, आप इन्हीं, आइनहा से मुराद सेम यानी इन्हीं मिसालों को आप देखेंगे दूसरी तरफ भी, यानी बाएं तरफ, जैसे ये वाली साइड में। बाद अन दख़ल अला कुल्लि मिन्हा अहदुल अफ़ाल, ठीक है ना, उनके ऊपर यानी इन्हीं मिसालों के ऊपर इन अफ़ाल में से जिनका आगे ज़िक्र हो रहा है, इनमें से एक फ़ेल के दाखिल होने के बाद, यानी सेम उन्हीं मिसालों को देखेंगे लेकिन उनसे शुरू में मंदरज़ेल अफ़ाल में से कोई एक फ़ेल दाखिल है। काना, सारा, लैसा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता। वइज़ा तअम्मल तवाखिर अल अस्माई फ़ी हाज़ल क़िस्म, और अगर आप इस किस्म के अंदर अस्मा के आखिर पर गौर करें, वजदतल इस्मल अव्वल मरफ़ूअन फ़ी कुल्लिल अमसिला, आप पाएंगे पहले वाले इसम को हर एक मिसाल में मरफ़ू हालत रफ़ी में पाएंगे, जैसा कि हमने मिसालों में समझ लिया है। वलिस्मुस्सानी मंसूबन, और दूसरी इसम को आप मंसूब पाएंगे फ़ी जमीहा यानी इन तमाम मिसालों में। वमा हदस हाज़ा तग़यीरु इल्ला मिन दुख़ूलिल अफ़आल मुतक़द्दिमा, कह रहे हदसा मनी पैदा होना, वमा हदस हाज़ा तग़यीर तब्दीली, तग़यीर मने तब्दीली, ये तब्दीली पैदा नहीं हुई है मगर किस वजह से, मिन सबबिया है, मगर
اوپر والے افعال کے داخل ہونے کی وجہ سے. فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ اِذَن تب تو یہ افعال تدخل داخل ہوتے ہیں علی المبتدا والخبر مبتدا اور خبر پر. فَتَرْفَعُ الْأَوَّلَ اور پہلے والے کو رفع دیتے ہیں اور اسے اس کا اسم کہا جاتا ہے. وَتَنْصِبُ الثَّانِيَ اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں. وَيُسَمَّى خَبَرًا اور اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے. وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَمَلَهَا کہہ رہے ہیں یہاں ان مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا کانا صارا اصبحا لیسا ان کے جو ہے ماضی کو جو ہے بتایا گیا. ماضی مثالوں میں ماضی ان کا جو فعل ماضی لایا گیا مضارع نہیں لایا گیا. صرف البتہ لیسا کا جو ہے مضارع نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے یاد رکھیے گا باقی کا آ جاتا ہے مضارع بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا فعل ماضی ان کا استعمال ہوا ہے مثالوں میں. کہہ رہے اسی طرح کا سیم عمل جو ہے ان افعال کے جو مضارع ہیں اور امر ہیں وہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں. یعنی جس طرح فعل ماضی نے اپنے اسم کو رفع دیا اور خبر کو نصب اسی طرح ان کا جو فعل مضارع ہوگا یا امر ہوگا وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا. یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب. غیر ان لیسا البتہ لیسا کے علاوہ غیر ان لیسا لا یاتی البتہ لیسا جو ہے لا یاتی منہا مضارع ولا امر لیسا سے مضارع نہیں آتا ہے اور نہ ہی امر آتا ہے. یعنی اس کا مضارع اور امر نہیں بنتا ہے. لیسا کا یلیس نہیں کریں گے فعل امر الیس نہیں بنا سکتے ہیں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي أَمْثِلَتِهَا اور اگر آپ ان مثالوں کے اندر ان افعال کے معنی کے اندر غور کریں وجدت آپ پائیں گے ان کانا کہ کانا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا اتصاف المبتدا بالخبر فی الزمن الماضی کہ مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے. کب؟ فی الزمن الماضی زمانے ماضی میں. یعنی کانا منی تھا. ٹھیک ہے. وسارا اور سارا تدل داخل دلالت کرتا ہے تحول المبتدا مبتدا کے ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جانے پر دلالت کرتا ہے. اور لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے. جہاں تک اصبح امسا اضحا ظلا باتا کا تعلق ہے تو یہ سب کے سب جو ہے مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کے وقت کا فائدہ دیتا ہے کہ کس وقت. جیسے صبح کے وقت سے یا شام یا چاشت یا دن اور رات الگ ترتیب کے ساتھ جو اصبح صبح کے لیے امسا مسا کے لیے اضحا ضحا کے لیے النہار کے ساتھ ظلا النہار کے لیے اور لیل کے لیے باتا ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے. القواعد وقت زیادہ ہو چکا ہے. قاعدہ دیکھیے تدخل کانا علی المبتدا والخبر مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں کانا اور اب پہلے والے کو رفع دوسرے کو اور اس کو اس کا اسم کہا جاتا ہے. وہ تنصب الثانیہ اور نصب دیتے ہیں ثانی دوسرے کو اور اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں مثل کانا فیما تقدم سارا جو اوپر مثالیں گزر گئی ان میں جو ہے سارا کی طرح ہی ہیں. کون کون؟ لیسا سارا لیسا اصبح امسا ضحا ظلا باتا اور ان کو اخوات کانا کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا مضارع اور امر بھی آتا ہے جو ماضی کی طرح ان کے ماضی کی طرح عمل کرتے ہیں سوائے لیسا کے اس سے نہ مضارع آتا ہے نہ امر. سبق تھوڑا سا میرے خیال سے ویڈیو لمبا ہو گیا ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں چونکہ سبق کو آج مکمل کرنا ضروری تھا ورنہ اس میں پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا تو شاید سمجھنے میں پریشانی ہوتی.